Why 80 to 90% of students fail in CA exams? Is it the difficulty of syllabus or low pass percentage, or is it something else which we are missing? Don't worry, in this video I am going to dive deep into the real reason behind shockingly low pass percentage and shockingly low result in CA exam. So if you are a CA student or you are planning to do CA, then this video is a must watch for you guys. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhicha and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. एक और अटेम्प्ट चला गया, एक और रिजल्ट भी आ गया, एक और अटेम्प्ट भी आने वाला है और एक और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद। आई नो सीए स्टूडेंट्स की अब यही तो साइकिल बची है। तो इस साइकिल में आपका बेस्ट पार्टनर पता है कौन बनने वाला है? विच इज सीए वाला, बिकॉज उनके पास आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चाहे आप सीए फाउंडेशन में हो, चाहे सीए इंटरमीडिएट में हो, चाहे आपका जनवरी 25 में अटेम्प्ट है, चाहे मई में है या फिर सितंबर में है, इनके पास आपके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है ही है। सो क्यों वेट कर रहे हो? डू चेक आउट देयर वेबसाइट्स, बिकॉज इनके पास में रिजल्ट्स इतने अमेजिंग रहे हैं ना कि रैंक्स आई हैं AIR 1, 25, 31 इन इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन में तो बहुत सारे बच्चों के 300 प्लस मार्क्स आए हैं। सो अगर आपको भी अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करनी है तो अपना पार्टनर आपको बेस्ट चूज करना पड़ेगा एंड योर बेस्ट पार्टनर वुड बी सीए वाला। प्लस 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 अभी तो इनकी क्रिसमस और न्यू ईयर सेल चल रही है जिसमें कि आपको 65% ऑफ मिल जाएगा एंड इफ यू यूज माई कूपन कोड विच इज तन्वी यू कैन गेट एक्स्ट्रा 200 ऑफ ऑन योर परचेज। बट अब आप सोच रहे होगे कि मुझे कौन से बैच में रजिस्टर करना चाहिए, तो लेट मी टेल यू विच बैच विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। If you are in foundation, you can go for CA Foundation, संपूर्ण प्रो और रेगुलर बैच which is for May and September attempt. अगर आप इंटरमीडिएट में हो, you can go for CA Inter Regular और Pro उदेश बैच which is a Group 1 and Group 2 combo again for May and September 25 batch. सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? टॉप नॉच फैकल्टीज का सपोर्ट मिल रहा है आपको अगर आप रेगुलर बैच में जाते हो। यू कैन गेट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज एंड 24/7 डाउट सपोर्ट सेशन, डेली टेस्ट एंड वीकली असाइनमेंट। एंड इफ यू गो फॉर प्रो बैच तो आपको प्रो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर फ्री, एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? ये ऑफर सिर्फ 2 जनवरी तक वैलिड है, सो प्लीज गो एंड चेक आउट ऑल देयर लिंक्स एंड गेट रजिस्टर्ड इफ यू वांट अ बेस्ट पार्टनर फॉर योर CA preparation. Now let us start with the real reasons behind the failure of students in CA exams. The most obvious and major reason behind the failure of students in CA exams is syllabus and its complexity. CA is known for its huge syllabus and technical concepts. Most of the students rely upon rote learning or not getting deeper into the topic to understand the topic completely. They just rely on learning it and grabbing it and not understanding the topic. Plus, the syllabus is very vast and very huge, which makes it difficult to remember all the concepts at once. So that is why it is required to do numerous revisions and understand the concepts to fully analyze the questions and analyze the reasons behind those. That is why it is important to not rely upon rote learning while preparing for CA exam. Next is lack of proper planning. Major students make the mistake of not planning their syllabus in advance. They just completely go with the flow without having a proper plan, and this is why they just focus on some of the subjects ignoring others. But remember, CA में बहुत सारे subjects होते हैं and all the subjects holds equal importance. चाहे वो open book हो, चाहे वो कुछ भी हो, but all the subjects hold equal importance, and that is why it is important to plan for all those subjects so that आपका कुछ subject miss ना हो जाए और आपका aggregate किसी एक subject की वजह से रह ना जाए.
दैट इज़ वाई मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपकी एक प्लानिंग जर्नल अपने आप बना लो, एंड आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, डू चेक दैट वीडियो कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है और अपना स्केड्यूल कैसे सेट करना है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सी एग्जाम. Next is ineffective study techniques. Here's the truth. How you study is as important as how much you study. So आपकी स्टडी टेक्निक कैसे है, आप कैसे पढ़ाई करते हो, या सिर्फ आप थ्योरी को रट्टा मारते हो, या थ्योरी सिर्फ पढ़ते रहते हो, उसको लिख के नहीं देखते हो, इज एज इम्पॉर्टेंट एज कि आपने कितना पढ़ लिया है. सो अगर आपने थ्योरी सिर्फ पढ़ पढ़ के याद करी है, उसको लिख के नहीं देखा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. ट्रस्ट मी, अगर आप जब तक आप लिख के नहीं देखोगे, प्रेजेंटेशन होल्ड्स इक्वल इंपॉर्टेंस इन एग्जाम, चाहे आपने जितना मर्जी पढ़ लिया है. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इट प्रॉपरली और प्रेजेंट योर आंसर प्रॉपरली इन द एग्जाम, एग्जामिनर विल नॉट नो कि आपको कितना आता है. वो सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन से आपको जज करेगा. तो मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आप कैसा फ्लो बना रहे हो आंसर का, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर है, उसमें आपने क्या कैसे लिखा है, पूरा कंटेंट डाला है या नहीं, कंक्लूजन डाला है या नहीं. ऑल दीज थिंग्स मैटर एज मच एज यू स्टडी. सो प्रेजेंटेशन तो बहुत बड़ा की फैक्टर है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. नेक्स्ट इज मेंटल एंड फिजिकल बर्नआउट. जी हाँ, आपको लगता होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस होल्ड्स द मेजर इंपॉर्टेंस. हम इतना पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, हम स्ट्रेस ले लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है फेलियर का, हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, हम अच्छे से सोते नहीं हैं, 2-2 घंटा सो के बाकी पढ़ाई कर रहे हैं. दिस शुड नॉट बी द वे ऑफ हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एग्जाम्स, बिकॉज आपकी मेंटल और आपकी फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रखती है. क्योंकि अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं हो, आपका मेंटली आप सेन में नहीं हो, आप मेंटली पीस में नहीं हो, यू वोंट बी एबल टू स्टडी प्रॉपरली फॉर एग्जाम्स. अगर आप मेंटली ही बर्न आउट कर लोगे अपने आप को, या फिजिकली ही बर्न आउट कर लोगे, हाउ वुड यू बी एबल टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स. सो ये एक प्री रिक्विजिट है कि आपको अच्छी स्लीप लेनी है, अच्छा फूड लेना है, मेंटली अच्छा पीस में रहना है. अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, टेक अ ब्रेक फॉर अ डे और 2 एंड देन रिज्यूम विथ योर स्टडीज अगेन. बट नेवर एवर बर्न आउट योर सेल्फ, बिकॉज आपकी फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एग्जाम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज फियर ऑफ फेलियर. बहुत सारे लोगों को ये फियर होता है कि हम फेल हो जाएंगे, एंड दिस फियर इज देयर इवन बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर. कि उनको फियर होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगी. एंड आई नो ये सबको कहीं ना कहीं होता है. मेरे अंदर भी ये फियर था व्हेन आई वाज गिविंग माय पेपर 1, एंड पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट हुए क्वेश्चन पेपर, मुझे तभी लगा मैं फेल हो जाऊंगी. मेरे अंदर इतना डर आ गया कि मैं अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाई. जबकि मुझे पेपर आता था 50-60 मार्क्स का, अच्छे से आता था. देन ऑल्सो आई फेल्ट कि नहीं यार मैं फेल हो जाऊंगी. मैं इसकी वजह से अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाई. एंड आई नो दीज बटरफ्लाइज आर फॉर रियल, दीज एंग्जाइटी आर फॉर रियल. दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि ये फियर को ना कभी मत आने दो, स्पेशली एग्जाम कर अटेम्प्ट करने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दिस फियर कैन पैरालाइज यू वाइल अटेम्प्टिंग द आंसर्स इन द एग्जाम. सो मेक श्योर कि आपके अंदर ये फियर कभी ना आए. फोकस ऑन योर प्रोग्रेस एंड नॉट द रिजल्ट्स ऑफ अदर्स और नॉट ऑन द एंड टास्क. जस्ट अपना फोकस अपनी प्रोग्रेस पे रखो, एंड आई एम श्योर यू विल बी थ्रू इट. एंड हाँ, हम ये कैसे भूल सकते हैं द लो पास परसेंटेज. आई नो ICAI हैज सेट अप इट्स पास परसेंटेज वेरी लो, बिकॉज उनको भी ये इंश्योर करना है कि जो लोग यहाँ से CA बने उनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, उनका कोई मतलब स्टैंडर्ड्स उन्होंने इतने हाई सेट कर दिए ना कि कोई भी आके CA इजीली नहीं कर पाएगा. एंड बट ये ओनली रीज़न नहीं होना चाहिए कि आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने करा है एंड आपके बाद बहुत सारे लोग करेंगे. सो ये रीज़न आपको रोक के नहीं रखना चाहिए अपने दिमाग में, या फिर आपकी प्रोग्रेस को ये स्टॉप करने का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए. बिकॉज despite having the low pass percentage, people have cleared the CA exams and people have secured ranks in CA exams. I know pass percentage is low, 10 to 20% is very less in a pass percentage, but उस 10 to 20% को क्रॉस करने के बाद जो आपको स्टेटस मिलेगा, जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, दैट इज अनमैच्ड. So now let's see how you can be those 10 to 20% who cracks the CA exam. First of all, सिलेबस को आपने रट्टा नहीं मारना है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को. यू हैव टू प्लान प्रॉपरली फॉर द एग्जाम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस
एंड यू हैव टू डू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर द एग्जाम्स सो दैट आपके सब सब्जेक्ट्स कवर हो जाए. अदर देन दिस, presentation holds key importance. You have to give mock test paper in the same circumstances as you are giving ICAI paper so that आपको पता चल जाए आपकी स्पीड कहाँ लैग कर रही है, आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ लैग कर रही है, and you can assess your result. You do not have to let fear of failure come your way of preparation or paralyze your preparations. And additionally, आपको सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है. यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप, टेक प्रॉपर रेस्ट, गुड फूड, इंजॉय एंड अच्छे मन से खुश होकर पढ़ाई करनी है. ऐसे पढ़ाई करनी है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला हूँ, या इसके बाद मुझे सी डिग्री मिलने वाली है, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. ऑलवेज रिमेंबर योर एंड गोल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स. ऑल्सो इन द एंड आई वुड से डोंट चेज द रिजल्ट, चेज एक्सेलेंस. अगर आप एक्सेलेंस को चेज करोगे, रिजल्ट आपके पास आएंगे ही आएंगे. I know C exams can be tough, the pass percentage is very low, but with the right practice and right approach, you can sail through it and you can grab that CA prefix for yourself, you can grab that degree for yourself, your parents, and I know आपको उनको proud करवाना है, आपको खुद को proud करवाना है, तो I know आपको ये सब मिलके ही रहेगा. Did any of these reasons resonated with you? Drop that in the comment section below and I am going to reply to all of you. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.